So we were doing consumers equilibrium two commodity case. So we made an assumption that a consumer wants to consume two commodities, X and Y. Price of X is 1 rupee, price of Y is also 1 rupee, and he has the income of 5 rupees, which all the 5 rupees he wants to spend on the consumption of both the goods, X and Y. So the question before him is, how many rupees should he spend on X? How many on Y? So that his satisfaction is maximized. So the consumer has presented his marginal utility schedule of X and of Y. These are independent. यानी उसने जब इनको शेड्यूल को फ्रेम किया तो पहले उसने ये सोचा कि मैं अपने 5 रुपए एक्स के ऊपर कंज्यूम करूं तो मुझे उससे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, और अगर मैं सेम 5 रुपए वाई के ऊपर स्पेंड करूं तो मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी. फिर हमने इनको इकट्ठा लिख दिया. नाउ इट्स अवर टर्न टू गाइड द कंज्यूमर. सो इमेजिन योरसेल्फ एज अ कंज्यूमर who is consuming apples and oranges, and here is the marginal utility schedule. So first rupee, you are a rational consumer, समझदार हो. So first rupee आप इसको देखते हुए किसके ऊपर स्पेंड करना चाहोगे? On the consumption of X or on the consumption of Y? On the consumption of X. Reason? You are getting more utility from X as compared to that of Y. Okay. Now is the time to spend second rupee. If you spend your second rupee on the consumption of X, you will get marginal utility equal to 8. On the other hand, if you spend it on the consumption of Y, your utility will be equal to 8. First second rupee है, Y तो पहला यूनिट कंज्यूम करोगे ना, रुपी सेकंड है, लेकिन Y का पहला यूनिट ही कंज्यूम करोगे ना सेकंड रुपी से, तो उससे कितनी यूटिलिटी मिलेगी? बोलिए 8. So you tell me on what commodity would you like to spend your second rupee? How many say X? Raise your hand. Okay. How many say Y? बाकी? Okay. YX. Same ही है. Okay. Y. एक्सक्यूज मी मैम. Yes बच्चे. मैम अपने मार्जिनल यूटिलिटी वाई पे अपने मैम 10 में से -2 क्यों माइनस कर दो? आपको 10 में से क्यों माइनस क्यों हो रहा है? कहाँ पर मैंने माइनस किया बेटे? मार्जिनल यूटिलिटी वाई आपने 2 कम किए बेटे, क्योंकि हो सकता है आपको X ज्यादा यूटिलिटी देता है, Y कम देता है. हर कमोडिटी आपको सेम यूटिलिटी नहीं देती. अगर आपको एप्पल ज्यादा अच्छे लगते हैं तो एप्पल से आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑरेंज. Isn't it? ये उसका मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल है, डिपेंड्स अपॉन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. गॉट इट? ओके मैम. तो आपने Yes, कहा कि मैम एक ही तो बात है, चाहे X ले चाहे Y ले, सेम यूटिलिटी मिल रही है. सो आपके आंसर में ही आपका क्वेश्चन है बेटे, अगर सेम यूटिलिटी मिल रही है तो X वो ऑलरेडी ले चुका है. Why don't he take the Y now? He has already tasted X, consumed X. Now if he spend next rupee on X, he will get utility equals 8. If he spends it on Y, he will get utility equal to 8. So as a consumer, wouldn't you like to taste Y now? Yes. So second rupee will be spent on the consumption of Y. ठीक है, 2 रुपए उसके डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 3 रह गए. थर्ड रुपी अगर वो X के ऊपर स्पेंड करे तो कितनी यूटिलिटी? 8. Y के ऊपर स्पेंड करेगा तो 6. अब क्लियर कट चॉइस है. X. Third rupee will spend on the consumption of X. You are rational, you are getting more utility from X, so of course you will go for X only. Fourth rupee, if you spend on Y, 6. If you spend on X, same.
तो इसको ऑलरेडी स्टॉक है, 2 यूनिट्स कंज्यूम कर चुके हो, इसका स्टॉक कम है आपके पास। समझ लो ये शर्ट्स हैं, ये ट्राउजर्स हैं, 2 शर्ट्स ऑलरेडी हैं, तो तीसरी शर्ट की बजाय आप क्या प्रेफर करोगे? ट्राउजर। सो 4th rupee you will spend on the consumption of Y commodity. 4 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कितने रुपए हैं उसके पास? 5. 5th rupee if he spends on X, utility is, if he spends on Y, now on the consumption of X, clear cut choice है, he will spend 5th rupee on the consumption of X. When he does it in such way, that is when he spends rupees 3 on the consumption of X and rupees 2 on the consumption of Y, the last rupee spent on X, 3 रुपए स्पेंड किए ना, तो लास्ट रुपी 3rd रुपी हुआ, उससे कितनी यूटिलिटी मिली? 6. लास्ट रुपी स्पेंट ऑन Y gives him utility equal, that is last rupee spent on the consumption of both the commodities gives him same marginal utility. जब वो इस तरह से अपनी परचेज करता है, ठीक है, उसने किस तरह से की कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज्ड रहे, और जब उसने इस तरह से परचेज करी तो उसने देखा लास्ट रुपी जो उसने स्पेंड किया है उससे मिलने वाली यूटिलिटी सेम है। यानी अगर वो इस तरह से स्पेंड करे अपनी इनकम कि लास्ट रुपी उसको सेम मार्जिनल यूटिलिटी दे, तो उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी? मैक्सिमाइज्ड। यही तो कंडीशन लिखी थी हमने। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? MUX over PX should be equal to MUY over PY. Here, what is MUX? 6. What is price? 1. What is MUY? Condition is satisfied. So he is getting maximum satisfaction. But still, in order to clear your doubt, some of you don't seem satisfied कि ये क्या बात हुई 3x और 2y अपनी मर्जी है क्या? मैं कह रही हूं आप you have faith. If you do not have faith, let us prove it logically. पहली सिचुएशन, ये हमने उसको सोल्यूशन ये वाली दी 3 on x 2 on y। अगर वो इस तरह से स्पेंड करता है तो हम देखते हैं उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी आती है। x पे 3 रुपए खर्चे, पहले रुपए से कितनी यूटिलिटी मिली, दूसरे से, तीसरे से, टोटल कितनी हो गई? कितनी हो गई? 2 रुपए y के ऊपर, उससे कितनी यूटिलिटी मिली? 8 + 6 इक्वल्स टोटल कितनी मिली? 38. Now, if you rearrange the purchase in any other way, total utility will be less than 38. You tell me, rearrange करो, 3 और 2 को rearrange करो ना, 3 और 2 को rearrange करो, टोटल यूटिलिटी ऐसे नहीं। व्हाट ही वांट्स टू से इज कि अगर हम 2 रुपए x के ऊपर खर्च दें, यही बोल रहे हो, और 3 रुपए y के ऊपर, ऐसे बोलो, ठीक है, परचेज को रीअरेंज करना है ना। सो लेट अस सी, 2 रुपए x के ऊपर तो कितनी यूटिलिटी मिली? 10 + 8 18। y के ऊपर 8 3 रुपए खर्चे गए, 8 6 4 कितना? 18। 18 + 18 लेस देन 38। यस, चलो और कोई फिर बता दो तरीका। 4 on x 1 on y कर ले, 4 on x 1 on y। आप कहते हो मेरे को तो x ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे इसने कहा था मैं x ही खरीदूंगा, ठीक है, तो कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 10 + 6 प्रॉपरली।
10 plus 8 plus 6 plus 4 20। 1 रुपया बचा y के ऊपर। y से कितनी यूटिलिटी मिली? 8। 28 plus 8 अगेन 36 लेस देन 38। चलो और कोई तरीका बता दो। 1 on x 4 on y, ऐसे कर ले। 1 on x 4 on y 10। 4 on y 8 6 4 2 कितना? 20। 20 plus 10 30। In any other way, you rearrange his purchase, his total utility will be less than 38, which means the maximum utility which he get is 38. How he gets 38? By spending 3 rupees on and 2 rupees on. Here, last rupee spent gives सेम मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप रीअरेंज करते थे तो वो कंडीशन वायलेट हो जाती थी। 2x पे करोगे तो लास्ट रुपी से 8 यूटिलिटी मिलेगी, 3y करोगे तो 4। कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सो इन ऑर्डर टू गेट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर should spend his income in such a way that he gets last rupee spent gives him same marginal utility. Okay, any child having any doubt? Another. So let's start with the diagram. First of all, you will take a distance of 5 centimeter. 5 centimeter का distance ले लीजिए। स्केल रखा करो बेटे, नहीं है तो आप अंदाजे से इसको ले लो। 5 सेंटीमीटर्स। इधर एक्सिस ड्रॉ कर लो। दिस इज रिलेटेड टू MUX. On y-axis we have taken marginal utility of x. On x-axis we have taken units of commodity. Units of commodity x. 0, 1, 2, 3, 4, 5. This side, is it clear? Navya, Mansi, Kinjal, Isha. All right, यहां तक ड्रॉ कीजिए। On x-axis, units of commodity x, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। Marginal utility of x, स्केल क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10. Now, you draw one parallel line 5 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम। क्योंकि आपकी नोटबुक्स लाइंड है तो आप जिस तरह से 2 पहली लाइन पे था, यहां पर भी 2 लिख दीजिए। मैं इसके सामने ले लूंगी वही स्केल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो मैंने आपको बता ही दिया, इस डायग्राम को हमने सुपर इम्पोज किया है। तो जब सुपर इम्पोज करेंगे, जब ऐसे लिखा है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। जब इसको उल्टा देंगे तो कैसे आ जाएगा? 0 5 के नीचे, 1 4 के नीचे, 2 3 के नीचे, 3 2 के नीचे, 4 1 के नीचे और 5 0 के नीचे।
इधर की तरफ जा रहा है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। Got it? Shall we plot? Firstly, we will be plotting MUX curve. When the consumer consumed first unit, marginal utility is equal to 10 utils or rupees. Second per 8, third per 6, fourth per 4, 5 per 2. MUX curve. ये आ गया आपका MUX curve. I'm giving you time to draw it. ठीक है, यहां तक हो गया। MUY कर्व ड्रॉ करें अब। फर्स्ट रुपी पे 8, सेकेंड रुपी पर 6, then 4, then 2, and then 0. This is MU curve, MUY curve. Both the curves are intersecting at this point. I am naming it E. Here is the equilibrium of the consumer. But consumer ये जानने में इंटरेस्टेड है कि कितने यूनिट्स वो X के खरीदे और कितने Y के। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। X एक्सिस पर मीट कर रहा है ये। देखो ध्यान से, पहले बोर्ड की तरफ देखो, छोड़ दो। Corresponding to E point, he should consume 3 units of X and 2 units of Y. In this way, his total utility will be maximum. यहां तक ड्रॉ कर लो, फिर आगे चलते हैं। Now again, why not where MUX over PX is greater than MUY over PY. ठीक है, क्यों वो ऐसे नहीं करता? 2 रुपए खर्चे X के ऊपर और 3 रुपए खर्चे Y के ऊपर, ऐसा क्यों नहीं? मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, उसकी टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसको कैसे लिखना है, कैसे समझाना है। अगर वो इस तरह से स्पेंड करे 2 रुपए X और 3 रुपए Y के ऊपर, यहां पर क्या है, MUX ओवर PX 8 है और MUY ओवर PY 4 है। Marginal utility of X derived per rupee marginal utility from X, 1 रुपए से मार्जिनल, जो X से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट डिराइव्ड फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम Y. Per rupee marginal utility derived from X is greater than the per utility derived from per unit per rupee utility of Y.
So you are a consumer, what would you like to do? जब आपको एक कमोडिटी से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कंपेयर टू अनदर, आप जिससे ज्यादा मिल रही है उसको ज्यादा खरीदना चाहोगे? यस। तो अगर आपके पास तो 5 रुपए ही है, अगर आप एक्स की कंजम्पशन बढ़ाओगे तो वाई की ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ेगी। जब आप एक्स की कंजम्पशन बढ़ा दोगे, क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि इससे मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा है। जब आप इसकी कंजम्पशन बढ़ाओगे, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, कम होके कितनी हो गई से 6। जब इसकी बढ़ाई तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको कम करोगे, लॉ ऑफ डीएमयू ये भी तो कहता है ना, जिसका स्टॉक कम है उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। तो इसकी यूटिलिटी 4 से बढ़ के कितनी हो गई? 6। ये तब तक चलेगा जब तक ये दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम ना हो जाए। यहां पर तो एक यूनिट कंजम्पशन से हो गई, कोई और एग्जांपल लेंगे तो हो सकता है ज्यादा तक उस देर तक उसका चले इम्बैलेंस। तो जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता तब तक उसकी रीअरेंज होती रहेगी, मतलब स्टेबल नहीं होगा कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर यहाँ पर अपनी कंजम्पशन स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको ज्यादा फायदा हो रहा है तो वह एक्स की कंजम्पशन बढ़ा देगा, वाई की कम कर देगा। जब एक्स की कंजम्पशन बढ़ाएगा, एक्स की यूटिलिटी कम हो जाएगी और ये किसके बराबर आ जाएगी? वाई की यूटिलिटी। कब आएगी? where MUX over PX, तब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस। Why is he not in equilibrium when MUX over PX is less than MUY over PY? यहां पर Y की यूटिलिटी ज्यादा है, यस, तो Y की कंजम्पशन बढ़ाएगा और X की कम करेगा। जब X की कंजम्पशन कम करेगा तो X की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। यहां से देख लो, लेस देन 1 2 3 4 रुपीज इस पे खर्च रहा है, 1 रुपया इस पे खर्च रहा है। तो MUX लेस देन MUY है, तो क्या करना चाहिए? Y की कंजम्पशन बढ़ाएगा, Y की कंजम्पशन बढ़ाई, 2 रुपए इसके ऊपर खर्च दिए, 6 आ गई लास्ट रुपी से, इसकी कम कर दी, इसकी यूटिलिटी बढ़ गई, अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है बेटे, ये कंज्यूमर का बिहेवियर है। जब उसको लगता है यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो कंजम्पशन बढ़ा देता है, जब उसको लगता है यूटिलिटी कम मिल रही है तो वो कंजम्पशन बढ़ाता है, जब उसको ज्यादा मिल रही है तो कंजम्पशन कम कर देता है। ठीक है, या जिससे कम मिल रही है या जिससे ज्यादा मिल रही है यूटिलिटी, उसकी कंजम्पशन इंक्रीज कर, एक की इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे की डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है। ठीक है, सो इन दिस वे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। Here the condition MUX over PX is equal to MUY over PY is satisfied. ठीक है, related to these I will be sending you some assignment questions. ठीक है, your consumer equilibrium using cardinal utility approach is complete. Now we are left with indifference curve analysis that we will be starting tomorrow. ठीक है, तो इसका टेस्ट आपका कल को होगा, फ्राइडे है ना कल, सो टुमारो टेस्ट विल बी देयर।